So today is a Sunday morning and you have taken time out to create your career with us, or maybe with some motivation which you had to crack CMAT. So first of all, I would like to thank you all to come to the webinar and attend this webinar. So I would like to promise you that after attending this webinar, I am 100% sure that you will be able to save your time by 20% in doing the quant section. This is what I mean to say. In this webinar, there will be two things, two part of the webinar will be there, which we are going to discuss. First, a little bit of the test structure and a motivation required to prepare for CMAT, and how headache tutorials make you prepare for CMAT. And then thereafter, we'll talk about the quant section of CMAT 2022 and 2021. उसमें से हमने कुछ specific question लिए हैं, and we are going to work on that. अच्छा, how many of you are comfortable with only English or only Hindi? Type yes for only English. Type yes for only English, and type, rather type HE, he for English. English के लिए आप HE टाइप कर दीजिए, हिंदी एंड इंग्लिश HE. So those who are ready for English, type HE. Okay. So major people are looking forward to have this webinar in English. Now you can, one more thing which I wanted to tell you or ask you is that I want you to tell me what you want to have this in webinar. If it is going to be possible for me to attend, to complete that thing in the same webinar, I'll do that. Otherwise, we will have a different set of webinar for the same topic which you are asking us. So please, you can unmute, you can type in the chat bot what are the things you want. Could you please share the recording of the session? Surely I'll do that. That is not a problem. It is being recorded and will be shared on our YouTube channel. What I want you is that कि आप मुझे बता दीजिए इस टॉपिक के अलावा आप और क्या चाहते हैं कि मैं इस वेबिनार में कवर करूं. If that topic is not, if we are not able to cover today, we'll be able to cover that thing in the future. There is a link also. You can send that link. On that link, you can type you want a webinar on that. But if there are some small topics which you want to convey today, we can do that today also. Please, आप unmute करके अपने आप को बोल सकते हैं कि what you want to attend in the webinar. Anybody who have something, innovation and entrepreneurship. Saurabh, we will have a different session on innovation and entrepreneurship. We are planning with the 5 webinars, each on every subject. Today is quant, then we'll come to English, then we'll come to LRDI, then we'll come to entrepreneurship, then we'll come to GK. In this way, we are going to have the 5 series of webinar. Don't worry. Innovation and entrepreneurship का भी एक पूरा webinar होगा. Anything else? चलिए. So let's move further. We are going to start with the presentation. And first thing which we are going to cover is the test structure of CMAT. आप सभी को पता है CMAT is used for which of the exam? आप सबको पता है CMAT से कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, CMAT से कौन कौन सी एग्जामिनेशन के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं. So you can apply to any number of colleges with the help of CMAT. So please make yourself comfortable. If you have any doubt, you can chat or you can speak in between also. You can unmute and speak in between. So I'm going to always talk about Anushka Gupta if we are new to the CMAT. ठीक है. Anushka, what is your background? Hello, sir. Good morning. Yeah. Yes, sir. Actually, I did my graduation recently. I was the BSc Honors student, and my background was chemistry. Okay, Anushka. So what I'll do, Anushka, I have your number. I'll connect with you today around 2 o'clock, and we'll discuss about your preparation plan, because it's a very personalized question, so we can discuss it in a personal way. Clear है? Okay, sir. No issues. Thank you, sir. चलिए. So next we'll come to the sections which we are going to talk about today. So the first thing which we are going to have is we are going to have something like, the first section which we are talking about is mathematics. So mathematics में we have quantitative techniques and data interpretation. These are two different subjects. One is quantitative technique and second is data interpretation. So we are going to talk about these two subjects. Might be possible today, or there are some other webinar which we can conduct on it. इसके अंदर क्या क्या आता है? तो majorly you will talk about arithmetic, algebra, geometry. ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कैट अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे या कैट के अलावा आप कोई दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे,
तो ये 3 मेजर एरियाज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीमैट के लिए. एंड आफ्टर दिस लिटिल बिट ऑफ मॉडर्न मैथ्स, दैट इज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड लिटिल बिट ऑफ नंबर सिस्टम. तो ये दोनों का लेवल बहुत कम हो गया है. जैसे लॉग, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, बड़े हाई लेवल के सेट थ्योरी के क्वेश्चंस, ये सब यहाँ से गायब होते हैं. तो हमारा बेसिक एजेंडा जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री. हमारा मेजर फोकस इसमें से भी जो होगा वो होगा आपका अर्थमेटिक. If you are very good at arithmetic, you can definitely crack CMAT at a very good score. But the paper is very easy. If you take out the paper from last 5 years, you will find that to solve paper of arithmetic or CMAT is very easy. But what is important is that you solve that paper in time with right accuracy. Try to understand. आपके लिए important क्या है? Right accuracy के साथ में पेपर को solve करना. तो अगर आपकी accuracy right नहीं है तो आप इसको solve नहीं कर पाओगे. So what is more important is to solve paper with right accuracy. Clear है मेरी बात? Yes or no? तो इसके बाद में आगे आपको सब स्ट्रक्चर बताइए. And then further we are going to move ahead with what? The presentation. जो हमारा क्वेश्चन है आज का जो डे है हमारा वो उसके ऊपर है. Now this is the first question which comes down from last year paper. ये लास्ट ईयर के पेपर में से क्वेश्चन है और इस पेपर का जो क्वेश्चन है वो है कि there are 50 students in a ratio of boys and girl is given as 4:6. How many students are there? There are 50 students and their ratio is what? 4:6. Ratio एक standard format में नहीं दिया हुआ है. So what we can do is 2:3. We can get the ratio in the standard format of 2:3. And now with this ratio 2:3, the total number of students in a class becomes 5. And when it becomes 5, there are total 60 students. So 5 is equivalent to 60. So this is 36 and this is 24. So there are 24 boys and 36 girls. Am I clear to all of you? 24 boys and 36 girls. Is that thing clear? But again, there is the average of girls is 60 and the average marks of the batch is 42. तो यहाँ पे मेजर एजेंडा मुझे इन वैल्यूज की जरूरत नहीं थी क्योंकि वेटेड एवरेज जो होता है वो डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व हो सकता है. वेटेड एवरेज जो होता है वो डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व हो सकता है. तो इस क्वेश्चन का जो क्लिक था वो यही था कि वेटेड एवरेज कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रेशियोज. तो आप ध्यान रखिएगा, देयर आर फॉर एवरी 2 बॉयज देयर आर 3 गर्ल्स. बॉयज अगर 2 है तो गर्ल्स कितनी है? 3. तो मेरा क्वेश्चन जो था वो यहीं पे क्लियर था कि अगर बॉयज 2 हैं तो गर्ल्स कितनी है? 3 है. गर्ल्स का एवरेज जो है वो 60 है, बॉयज का आई डोंट नो, और इन दोनों का जो मिला के एवरेज है दैट इज इक्वल टू 62. ये क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:3 में गिवन है और मुझे बॉयज का एवरेज नहीं पता है लेकिन गर्ल्स का एवरेज पता है. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द वेटेड एवरेज का फार्मूला. व्हाट इज द फार्मूला वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज का फार्मूला बोलता है W1 into A1 plus W2 into A2 अपॉन W1 plus W2. तो W1 तो मुझे पता है लेकिन A1 नहीं पता है. तो आई राइट दिस, इट विल बिकम 2x प्लस W2 3 है, एवरेज 60 है, इट विल बिकम व्हाट? 180 एंड दैट डिवाइडेड बाय 2 plus 3. और इसका ओवरऑल एवरेज मुझे कितना दिया हुआ है? 62. Is that thing clear to all of you? बोलिए. Type Y in the chat box if you are clear with it. Type Y in the chat box if you are clear with it. Type Y in the chat box if you are clear with it. If you are not clear, type N. If you are not clear, ask me the doubt currently. If you are not clear, type me the doubt by using your mic so that I can discuss with you. Clear है मेरी बात? देखिए 44 में से केवल 12 रिप्लाई आए मेरे पास में. यस दे आर क्लियर. इफ यू आर नॉट क्लियर आस्क मी. अगर आप क्लियर नहीं है तो प्लीज आस्क मी योर डाउट, देन ओनली आई एम एबल टू क्लियर इट. इस इक्वेशन को सॉल्व करना सबके लिए आसान है. बोलिए यस और नो. इज इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट थिंग? किसी को डाउट है? यस सर. नो सर. एवरीबॉडी इज क्लियर? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर. ओके. The next questions come down from the question of partnership. The question of partnership. तो partnership के question में क्या होता है? There is a
basic rule of partnership, whatever amount you are using, you are going to divide that thing in that ratio. जैसे कैपिटल इन्वेस्ट करा है मैंने तो उसके हिसाब से मैं रेशो में डिवाइड करूंगा, या मुझे कोई चीज यूज कर रहे हैं हम किसी हिसाब रेशो में, तो वी आर गोइंग टू डिवाइड आवर एक्सपेंडिचर इन दैट रेशो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 शिफ्ट फार्मर्स हैं. कितने फार्मर्स हैं? 4. दे आर यूजिंग अ पास्चर. पास्चर मतलब क्या होता है? एक ग्रीन लैंड होता है. उसमें से अनिल ने 24 शिप उसकी ग्रेस करी है. कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए. विमल ने 10 शिप ग्रेस करी है. कितने महीनों के लिए? 5 मंथ्स के लिए. एंड चंपक हैज 35 शिप्स फॉर 4 मंथ्स. क्लियर है मेरी बात? एंड दामोदर हैज 21 शिप्स फॉर 3 मंथ. So if I cancel out everything, this is 24 into 3 is 72. I can only cancel 2 भी cancel नहीं हो रहा है. And this is 10 into 5, 50. 35 into 4 is 140 and 21 into 3 is 63. So ये इस रेशो में इनका पूरा डिवाइडेड है. I cannot cancel these values by any one or more things. अब उन्हें बोला है कि अनिल ने टोटल कितने रुपए पे करे? 720. So this is the multiplying factor of what? 10. क्लियर हो रही है मेरी बात आपको समझ में? वो टोटल एडिशन आपको निकालना है. तो टोटल एडिशन है कितना हमारा? 3 + 2 is 5. उसके बाद में 7 5 12, 12 और 14 26, 26 और 6 32. तो इस 32 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बिकम 3250. तो माय आंसर इज बी, दैट इज 3250. इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? टाइप yes in the chat box if it is clear, and if it is not clear ask me your doubt. Can you repeat please? See, अनिल ने 24 काउस को 3 महीने के लिए ग्रेस कराया, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको. उसके बाद में 10 को किसी ने 5 महीने के लिए ग्रेस कराया, बी ने. फिर 35 काउस फॉर 4 मंथ एंड 21 काउस फॉर 3 मंथ. तो मैंने इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है. यहाँ पे क्या करके लिख दिया मैंने? इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने यहाँ पे. तो इफ आई हैव रिटन देम मल्टीप्लाइंग, दिस इज 72, दिस इज 50, दिस इज 140, दिस इज 63. इतना क्लियर है आपको? बोलिए yes or no. Yes sir. फिर उसके बाद उन्होंने बोला अनिल ने अपने शेयर के 720 रुपए दिए. अनिल ने अपने शेयर के कितने रुपए दिए? 720 रुपए दिए. तो मैंने इन तीनों वैल्यू, चारों वैल्यूज को क्या करा? ऐड ऑन कर लिया है. इंडिविजुअल हर एक की वैल्यू नहीं पूछी थी मुझसे, एडिशन की पूछी गई थी. तो मेरे ऐड करने पे क्या आया? 325. एंड इफ आई गॉट द वैल्यू एज 325, आई मल्टीप्लाइड दैट 325 बाय 10. So my answer has become 3250. My answer has become 3250. भाई 72 के लिए 720 प्राइस थी ना, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो I got the value as 720. Now this is the level of CMAT. कुछ बच्चे मेरी क्लास के हो समझ रहे होंगे कि लेवल क्या है. अगला क्वेश्चन है. The question itself says a copper wire having a length of 243 meter and diameter of 4 mm was to be melted to form a sphere. Find the diameter of the sphere. तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे आप. व्हाट इज द कंसेप्ट? तो कंसेप्ट ये बोल रहा है कि मुझे एक सिलेंडर है, उसको एक स्फेयर में कन्वर्ट करना है मेल्ट करके. तो अगर आप एक सिलेंडर को स्फेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मेल्ट करके करेंगे, तो दोनों का क्या सेम होगा? वॉल्यूम. क्या सेम होगा? वॉल्यूम. तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो सबसे पहले क्या कैंसिल हो रहा है? पाई से पाई कैंसिल हो गया. एनी डाउट? नाउ आई नो दिस इज द डायमीटर. 4 mm इज द डायमीटर. तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 mm. तो आई राइट 2/10. आई एम यूजिंग द सेम यूनिट फॉर एवरीथिंग, दैट इज इन सेंटीमीटर. और उधर मैं लिख रहा हूं 243 मीटर, तो दैट इज गोइंग टू बी 24300. ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखिए. ध्यान रखिएगा ज्योमेट्री के सवाल में आपका पूरा क्वेश्चन सेम यूनिट में होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो यू विल बी इन ट्रबल. ध्यान रखिएगा इस बात को. ये आ गया 4/3 आर क्यूब. तो इफ आई कैंसिल इट आउट, दिस इज 4/100 इंटू 24300 एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 आर क्यूब. 4 से 4 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल. 243 इंटू 3 कितना हो जाता है? 729. अब 729 किसका क्यूब है? 9 का. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 9 सेंटीमीटर. क्लियर है? लेकिन उनसे हमने आर नहीं पूछा है, क्या पूछा है? डायमीटर. तो कई बार हम आंसर लाके भी इस कंफ्यूजन में होते हैं कि आर की वैल्यू तो नहीं आंसर है नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है? डायमीटर. तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस से डबल.
तो आंसर विल बी 18 सेंटीमीटर. बी विल बी योर आंसर. इज दैट थिंग क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? बोलिए आप, किसी को कोई डाउट है क्या? सर डायमीटर कैसे निकाला था एक बार? रेडियस से डबल होता है ना डायमीटर. अगर रेडियस 9 है डायमीटर कितना हो जाएगा? 18. इज दैट थिंग क्लियर? सबसे पहले ये लाइन लिखना आना चाहिए आपको, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे क्वेश्चन की, कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड दैट ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल. यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. क्लियर हो रही मेरी बात? इफ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस को आप मान लीजिए 100 और कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो गई है? 80. अब वो पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट 80 की चीज कितने में बेच रहा हूं? 100. तो प्रॉफिट कितने का है? 20. एंड दैट डिवाइडेड बाय व्हाट? कॉस्ट प्राइस. तो ये आ गया 1/4. तो आंसर इज 25%. क्लियर है? अगेन माय आंसर इज गोइंग टू बी बी. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया सबको? द कॉस्ट प्राइस 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज. तो कॉस्ट प्राइस आपकी 80% है सेलिंग प्राइस की. मैंने सेलिंग प्राइस 100 अज्यूम करी है, कॉस्ट प्राइस 80 आ गई है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है इट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस. तो 20/80, 1/4. तो आंसर विल बी 25%. तो आंसर इज गोइंग टू बी बी. एवरीथिंग क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए विल मूव अहेड. क्वेश्चन बढ़िया आप ये वाला. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी. Without knowing any concept of probability, I can solve this question. आप मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से. Without knowing any concept of probability, I can solve this question. कैसे करूंगा इस पे ध्यान दीजिए आप. मुझे प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता है नीचे सैंपल स्पेस आता है, ऊपर सिलेक्टेड इवेंट आते हैं. अब सैंपल स्पेस निकालने के लिए कितनी बॉल्स है मेरे पास? टोटल 15 रेड बॉल्स है मेरे पास और 10 ग्रीन बॉल्स है. तो इनका अगर मैं सैंपल स्पेस निकालूंगा तो आएगा 25C3. क्यों? क्योंकि 3 बॉल सिलेक्ट करनी है मुझे. कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है मुझे? 3 बॉल सिलेक्ट करनी है. तो माय आंसर वुड बी 25C3 एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1 into 2 into 3, 25 into 24 into 23. तो ये 3 दूनी 6 से काटा, यहाँ पे क्या आ गया? 4. तो देखिएगा आप डिनोमिनेटर में मेरे पास एक वैल्यू आ रही है दैट इज 25 into 4 into 23. अब लुक एट द मैजिक. ये 23 एक प्राइम नंबर है जो कि ऊपर कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर तो 15 और 10 में से कुछ निकालना है. न्यूमरेटर में जो मेरा कॉम्बिनेशन आएगा 15 और 10 में से आएगा. तो मेरे डिनोमिनेटर में 23 होना कंपलसरी है. तो एक जगह यहाँ पे 23 है, यहाँ पे नहीं है 23 और यहाँ पे भी नहीं है. और क्या 117 23 से जाता है? नहीं जाता है. तो ये भी मेरा आंसर नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर. क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा है, कोई मेथड को यूज नहीं करा है, बट ऑप्शंस को देख के मैंने सॉल्व करा है. तो सीमैट में आप ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आप ऑप्शन से प्ले करना सीख जाएंगे आपके लिए पेपर इजी हो जाएगा और फास्ट गोइंग हो जाएगा. इज दैट थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए हाँ या ना. Sir, can you repeat this? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नीचे सैंपल स्पेस होना चाहिए, ऊपर फेवरेबल इवेंट्स होना चाहिए. तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए मुझे क्या बोला गया है? I want 25C3. टोटल 25 में से 3 बॉल निकालनी है. डू यू अग्री विद दिस? Yes, sir. 25 में से कितनी बॉल निकालनी है? 3 बॉल निकालनी है. तो 3 बॉल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा ये होगा 25 into 24 into 23 डिवाइडेड बाय 1 into 2 into 3. तो 2 3 से इसको कैंसिल करा तो क्या आ गया? 4. तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो बच रहा है वो बच रहा है 23. डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर बच रहा है वो बच रहा है 23, और वो कैंसिल भी नहीं होगा न्यूमरेटर से. तो यहाँ पे तो है ही नहीं डिनोमिनेटर में 23 दोनों में, तो ये हट गए. 46 में है 117 भी 23 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है. क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? बोलिए हाँ या ना. Yes, sir. Yes, sir.
चलिए, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. With an average speed of 40 km per hour, a train reaches its destination on time. If it goes with an average speed of 30 km per hour, it is late by 36 minutes. बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, जो कि बार बार यूज आता है. मेरी मेथड ये बोलती है, आप यहाँ पे पहली स्पीड लिख लीजिए 40, यहाँ पे दूसरी स्पीड लिख लीजिए, कितनी दी हुई है 30, इसका रेशो निकाल लीजिए, कितना आएगा 4 और 3. जब भी आपका डिस्टेंस ट्रैवल कांस्टेंट होता है तो टाइम का रेशो उसका इनवर्स हो जाता है. ये नोट कर लीजिए, जब भी आपका डिस्टेंस ट्रैवल इज कांस्टेंट, द रेशो ऑफ टाइम इज इनवर्स ऑफ द रेशो ऑफ देयर स्पीड. तो यहाँ पे टाइम का रेशो आ जाएगा 3:4, और इन दोनों में जो गैप है वो है 1 मिनट का, एंड दैट 1 इज इक्वल टू व्हाट 36. तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 108 मिनट के बराबर, और यहाँ पे जो 4 है ये आ जाएगा 144 मिनट्स के बराबर. अब इधर मल्टीप्लाई दिस 30 बाय 144 और दिस 40 बाय 60, आप जिससे चाहे कर लीजिए. आई एम यूजिंग दिस केस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट स्पीड इनटू टाइम. टाइम इज 144, लेकिन दिस इज इन मिनट, तो इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 60. क्लियर है? 30 से काटा, ये 2 आ गया, 2 से इसको कैंसिल करा, यहाँ पे क्या आ गया 72. तो डिस्टेंस ट्रैवल इज 72 किलोमीटर पर आवर. फिर से बोल रहा हूं, केवल और केवल आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए इस सवाल में वो इस जगह पे होना चाहिए, इतनी सी जगह पे मेजर फोकस आपका होना चाहिए, दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन टू केस, उसका जो रेशो होता है उसका इनवर्स ही टाइम का रेशो होता है. तो अगर ये 40 और 30 है तो टाइम का रेशो कितना करा है हमने 3 और 4, क्योंकि जनरली आपको उसका गैप ही दिया होता है. यहाँ पे गैप कितने के बराबर दिया हुआ है 36 मिनट्स के बराबर. 3 और 1 4, ये 1 हो गया, दिस 1 इज इक्वल टू 36, तो 4 इज इक्वल टू 144 एंड 3 इज इक्वल टू 108. इज दैट थिंग क्लियर? उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं करा है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है, और वो टाइम मिनट में था इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 60 करके पर आवर में कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो भी स्पीड गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में है. क्लियर है? बोलिए यस और नो. सर 108 और 144 कैसे आया है सर? हाँ जी, सर ये Sir, that one. ये वाला 1, यही वाला 1 बोल रहे हो ना? Yes sir, इसके बाद से ही मतलब 3 और 4 का रेशो 108. 1 है, 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है. मेरी बात समझ में आ रही है? इस 3 और 4 में डिफरेंस कितने का है 1 का है, Yes sir. और वहां पे टाइम में एक्चुअली डिफरेंस कितने का है 36 का है. Yes sir. तो अगर 136 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा 144 के, और 3 कितने के बराबर होगा 108 के. रेशो Okay, से सॉल्व करा है हमने. तो अब आपको पता है दिस इज 144 मिनट एंड दिस इज 108 मिनट. तो मैं इस 30 की स्पीड से 144 मिनट ले रहा हूँ, इस 40 की स्पीड से 108 मिनट्स ले रहा हूँ. मैं दोनों में से कोई भी चीज यूज करके आंसर मार्क कर सकता हूँ. क्लियर है मेरी बात? इन दोनों में से किसी भी स्पीड को लेके मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ. क्लियर है? बोलिए यस और नो गाइस, जल्दी यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. That's clear sir. ये आवाज तो अनुष्का की आ रही है. चलिए, दीपांशु बोला. पाई चार्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, टाइम कम बचा है. वी आर ऑलरेडी क्रॉस्ड हाफ एन आवर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट. तो दिस इज द फॉलोइंग पाई चार्ट. पाई चार्ट के अंदर आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये कुछ वैल्यूज गिवन होती है हर एक की. जैसे बी की वैल्यू 11 है, सी की वैल्यू 21 है. दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ. ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 11 है, सी की वैल्यू 21 है, डी की वैल्यू 9 है, ई की वैल्यू 26 है, एफ की वैल्यू 5 है और जी की वैल्यू 12 है. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि इन पांचों में से कौन से सेंटेंस करेक्ट है, ये आपको फाइंड आउट करना है. इन पांचों में से कौन से सेंटेंस करेक्ट है. तो ये बोल रहा है ए और बी की प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 यूनिट्स, ए और जी. तो ए और जी मिला के कितना परसेंट है 28%. तो 28% ऑफ 1500 मेरे ख्याल से 500 से कम आएगा, क्योंकि इसका 500 ही 33.33% होता है. तो इसलिए ए इज नॉट करेक्ट. समझ में आ रही है मेरी बात? सिंपल परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है, लेकिन
आंसर मार्क करने के लिए आपके पास में 1 से 1.5 मिनट ही है, तो आपको ये चीज थोड़ी सी जल्दी करनी होगी। प्लीज मार्क दैट नोट, ये चीज थोड़ी सी जल्दी करनी होगी। प्लीज मेक दिस नोन टू यू कि इसमें इसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। द कंपनीज बी एंड एफ आर प्रोड्यूसिंग मोर देन लेस देन 250 यूनिट्स। बी एंड एफ, तो बी 11 है और एफ कितना है 5, तो 16% निकालना है। इसका 16% होता है 240, तो 240 250 से कम होता है, इसलिए भी करेक्ट है। कंपनी सी एंड ई अकाउंट फॉर 705 यूनिट। सी कितना है 21 और ये कितना है 26, तो 47% हो गया। तो 47% ऑफ 1500 जो होगा वो कितना होगा, तो एग्जैक्टली आ रहा है वो 705। तो सी बी मेरा क्या हुआ है, करेक्ट हो गया है। फिर लिखा है कंपनीज डी एंड जी आर प्रोड्यूसिंग लेस देन 200 यूनिट्स। तो ये अपने आप में डी कितना है 9, तो 21% हो गया है। तो 21%, डी एन जी इज 21%, इसका 21% 300 से बड़ा होगा, 1500 के 300 से बड़ा होगा, इसलिए डी वाला गलत हो गया है। अब ई वाला देखते हैं। कंपनीज ई एफ जी अकाउंट्स फॉर 545 यूनिट। ई एफ जी, तो ई इज 26, एफ इज 5 31 और जी 12, तो हो जाएगा 43%। तो 43% 545 से तो बहुत ज्यादा आएगा, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शंस आर बी एंड सी। क्लियर है मेरी बात? बोलिए यस और नो। Yes, sir. Yes, नो sir. सर। हाँ जी, एनीबडी सेड नो? चलिए आगे चलता हूं मैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी और सी करेक्ट है, तो मेरा आंसर होगा ओनली बी एंड सी करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी। रेस्ट आर नॉट करेक्ट। क्लियर है? इसमें केवल सोचना इतना है कि आगे आंसर कौन सा मार्क करना है, तो बी एंड सी इज करेक्ट, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बोलिए यस और नो। yes sir, Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। In a local election between two candidates, one candidate got 55% of the total valid votes and was declared as a winner, and 15% of the votes were invalid. If the total number of votes polled were 15,200, what were the valid votes of the loser? ध्यान से समझिएगा, टोटल वोटर्स होता है एक क्वेश्चन, उसमें से कई बार आता है एलिजिबल वोटर्स, और एलिजिबल वोटर्स में से आते हैं वैलिड वोट्स। थोड़ी सी इस कहानी को समझ लीजिए बस आप। टोटल वोटर्स मान लीजिए कॉलोनी के अंदर है 1 लाख, उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो एलिजिबल नहीं होते वोट डालने के लिए, तो मान लीजिए 10% एलिजिबल ही नहीं है, तो 90% लोग ही वोट डालने जाते हैं। लेकिन जो लोग वोट डालने जाते हैं उसमें से भी कुछ लोगों के वोट खराब हो जाते हैं, वो पहले स्टैंप लगाने में 2 पे लग गई, 3 पे लग गई या मिक्स लग गई, तो ऐसे में उस वोट को इनवैलिड बोल दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से अगर 10% हमारे इनएलिजिबल है तो बचे हुए 90% ही वोट डालने जाते हैं, और इस 90% में से मान लीजिए 20% इनवैलिड वोट्स आ गए। क्या आ गए? 20% इनवैलिड वोट्स आ गए, तो वो 20% माइनस कर देंगे तो 72% ही वैलिड वोट्स होंगे। समझ में आई आपको मेरी बात? और उस वैलिड वोट में से 2 हिस्से होते हैं, एक हारने वाले का विनर और एक लूजर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वोटिंग के अंदर। तो वोटिंग की कहानी, टोटल वोट्स, टोटल वोटर्स कितने हैं, उसमें से कितने एलिजिबल है, उसके बाद में उसमें कितने वैलिड हुए हैं, वो जो वैलिड हुए हैं वो डिवाइड होते हैं विनर और लूजर के बीच में। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर, इतने वोट्स तो पोल्ड हुए ही हुए हैं, तो 15,200 में से कितने वोट्स इनवैलिड है? 15%। तो इसका 85% मेरे क्या हो जाएंगे? वैलिड वोट्स। क्लियर हो रही मेरी बात आपको? इसका 85% क्या हो जाएंगे मेरे? वैलिड वोट्स। और उसके बाद में इसमें से 55% किसको मिले? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 45%। अब ये आपका कैलकुलेशन बचा है, अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो यू विल गेट दी आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है? इस कैलकुलेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट दी
आंसर. इज दैट थिंग क्लियर टू यू? बोलिए yes or no. 6840. Sir, how we got this? Hello. 6840. हाँ जी जी जी, पूछिए पूछिए पूछिए. First option. Sir, how we got this 85 and 45? 15% इनवैलिड वोट से लिखा है. तो वैलिड कितने होंगे? Yes, sir. 85%. Yes, sir. वैलिड कितने होंगे? 85%. 85. Fine, fine. दिस इज 85% अपॉन 100. जीतने वाले को 55 मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 45%. आउट ऑफ 100 Yes. जीतने वाले को 55 मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 45%. Yes, sir. इज दैट थिंग क्लियर? बोलिए yes or no. Yes. चलिए आगे चलते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन वेयर द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 20 इयर्स. तो अगर आपको एवरेज दिया हुआ है 20 तो उनका एडिशन कितना हो जाएगा? 20 into 3 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 60. उनका एवरेज अगर दिया हुआ है 20 तो उनका एडिशन कितना हो जाएगा? 20 into 3 एंड दैट इज इक्वल टू 60. क्लियर है मेरी बात? और उनकी प्रोपोर्शन दी हुई है 2:3:5. तो एज का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5. तो टोटल कितना आ जाएगा इनका एडिशन? 10 के बराबर. टोटल कितना आ जाएगा उनका एडिशन? 10 के बराबर. और ये 10 कितने के बराबर है? 60 के बराबर है. ये 10 कितने के बराबर है? 60 के बराबर है. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया आपका 6. उनने ओल्डेस्ट फ्रेंड की एज पूछी है तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आंसर आ जाएगा 30. तो आंसर वुड बी 30 इयर्स. क्लियर है मेरी बात? बोलिए हाँ या ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछिए. Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछिए आप इसमें. अभी Sir, ये 6 के बाद एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा. टोटल एडिशन आया 10. 10 कितने के बराबर है? 60 के बराबर है. टोटल आया एडिशन 10. 10 कितने के बराबर है? 60 के. तो ये 5 कितने के बराबर हो जाएगा? 30. क्यों निकाला केवल 5? क्योंकि ओल्डेस्ट की वैल्यू पूछी थी. ओल्डेस्ट की वैल्यू पूछी थी और ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा. और सबसे बड़ा रेशो में है 5. तो आंसर हो जाएगा इसलिए 5 into 6. तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? 30. बोलिए yes or no. Yes, sir. Fine. इस क्वेश्चन को देख के मुझे लगता है ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के बगैर सॉल्व नहीं होगा. तो किस किस को पाइथागोरस थ्योरम आती है? प्लीज टाइप y इन द चैट बॉक्स. यस आई नो पाइथागोरस थ्योरम. y डाल दे चैट बॉक्स के अंदर. किस किस को पाइथागोरस थ्योरम आती है? Yes, sir. तो सबसे पहली हिट जो आपको दिमाग में क्रिएट करना होती है वो ये करना होती है कि ये क्वेश्चन कौन सी कंसेप्ट से सॉल्व होगा वो आपको क्लिक होना चाहिए. अगर वो आपको क्लिक नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये थ्योरम है. और ये थ्योरम जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है जिसमें इस स्लांट वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस. इसको आप रीराइट भी कर सकते हो. आप इसको भी बेस बोल सकते हो, इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हो. मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है. 90 डिग्री में जो दो साइड आती है वो P और B होती है. वो जो उसके अलावा होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है. क्लियर है? और हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी होती है. कंसेप्ट क्लियर हो गया? पाइथागोरस क्या होती है? नाउ लुकिंग एट द क्वेश्चन, इफ अ 30 मीटर लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल. ऐसे लगी हुई है. ये लेडर है आपकी जो कि 30 मीटर लंबी है. reaches to the top of the wall if the horizontal distance between the wall and the base of the ladder. मतलब ये इस चीज की बात कर रहा है. wall and the base of the ladder. इसका जो डिस्टेंस है वो 1/3 है the length of the ladder. तो 30 का 1/3 कितना होता है? 10. अब बस पाइथागोरस लगा के ये वाली वैल्यू निकालनी है. तो पाइथागोरस क्या बोलती है? 30 का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 30 का स्क्वायर कितनी होती है? 900. p की वैल्यू नहीं पता है बट v की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 का स्क्वायर 100. तो ये आ जाएगा 800 इज इक्वल टू p का स्क्वायर. इस 800 का अंडर रूट निकालना है अपने को. इस 800 का अंडर रूट जो होगा वो कितना होगा? तो वो हो जाएगा 20√2. तो आंसर विल बी बी 20√2 मीटर्स. इतना इजी क्वेश्चन था लेकिन कई लोग पाइथागोरस जानने के बाद भी इसको सॉल्व नहीं कर पाते केवल एक लाइन से. ये जो 1/3 लिखा हुआ है इसको देख के इससे डिफिकल्टी बढ़ जाती है इस क्वेश्चन की. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट छोड़ के आए इस क्वेश्चन को लास्ट ईयर. मेजॉरिटी बोले सर क्या मालूम क्या ट्रिग्नोमेट्री विग्नोमेट्री लग रहा था बोले. और फिर बच्चे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है.
एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, ये पाइथागोरस था। और अगर आप मेरी क्लास में आएंगे तो शायद और जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर पाइथागोरस भी न लगाए, और जल्दी भी सॉल्व हो सकती है। क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन? बोलिए, क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. यस किसी को डाउट हो तो बोलिए आप। इफ somebody is having any doubt, we'll reconfirm the question again, we'll resolve it. चलिए, मेरे को लगता है nobody is having doubt, I'll move to the next question. चलिए, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, पर इस बार बेस के अंदर देखिए सब में 7 का मल्टीपल है, तो इसलिए उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। जो शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताई थी उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। हर जगह 7 का मल्टीपल है डिनोमिनेटर में। तो भी क्वेश्चन करते हैं। A bag contains 6 red balls, 11 yellow balls and 5 pink balls. If 2 balls are drawn at a random from the bag, one of another, what is the probability that the first ball drawn was red and the second ball drawn was yellow? अब आप ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि नीचे कितनी बॉल निकाली है, 6, 11 और 5, कितनी होती है 22 बॉल्स। तो नीचे से क्या आ जाएगा 22C2। क्लियर है मेरी बात? नीचे क्या आ जाएगा 22C2, और उसके बाद में वन आफ्टर अनदर, व्हाट इज द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज अ रेड। तो पहली बॉल मैंने क्या ले ली है रेड, और दूसरी बॉल मैंने क्या ले ली है येलो। तो 61 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11, एंड दैट डिवाइडेड बाय 22 into 21 एंड दैट डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो कट ही गया पूरा। अब क्या बचा इसको काटने के लिए 2/7। कुछ गलत काटा क्या? सर 5 पिंक बॉल वाले को नहीं जोड़ेंगे क्या उसमें? एक येलो और एक रेड ही तो चाहिए, पिंक चाहिए ही नहीं भैया। एक रेड चाहिए और एक क्या चाहिए, सेकंड बॉल इज येलो। ओके सर, ओके। क्लियर है मेरी बात? पहले 6 में से एक निकालेंगे, आंसर आएगा इसका। मेरे को लगता है टाइपिंग एरर है, आंसर 1/7 लिखा होगा, बट आंसर शुड बी 2/7। क्लियर है मेरी बात ये वाली? नो सर। क्या हुआ बोलिए आप, क्या नहीं आया समझ में? फ्रॉम स्टार्टिंग सर। सबसे पहले कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता है आपको, ये बताओ मुझे, क्योंकि वही नहीं आएगा तो शायद दिक्कत हो जाएगी आपको। डू यू नो हाउ टू No, सॉल्व sir. कॉम्बिनेशन? नो ठीक है, तो देखो आप समझिए मेरी बात को, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। इसके अंदर 6 रेड बॉल है, तो 6 रेड बॉल, 11 येलो बॉल है और 5 पिंक बॉल है। तो टोटल 6, 11, 17 और 5, टोटल मिला के 22 बॉल्स है। उसमें से कितनी बॉल निकालनी है 2 बॉल निकालनी है। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 22C2 आएगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? बट इसमें एक Yes, sir. लाइन लिखी हुई थी, फ्रॉम द बैक वन आफ्टर द अनदर, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा है वो। तो इसलिए इसके अंदर पहले जो एक बॉल आएगी वो कौन सी निकालनी, फर्स्ट बॉल हमें जो निकालनी है वो निकालनी है रेड। पहली बॉल जो निकालनी है वो कौन सी निकालनी है, रेड निकालनी है। तो रेड में आएगा 6/22, पहली बॉल रेड आ गई, सिंपल लॉजिक। और दूसरी बॉल कौन सी निकालनी है आपको इसमें, येलो, तो 11/21। इससे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इज 1/7। क्लियर है? इसमें पहली रेड निकालनी है 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट है ये क्वेश्चन, वो में से मिस हो गया था पिछली बार। रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, तो रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ है इसलिए एक के बाद एक निकाल रहा है वो। और जब एक के बाद एक निकालते हैं तो कॉम्बिनेशन नहीं लगाते, अलग अलग केस बना के सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are the two statements. Statement of the set of the numbers 7, 8, 9, A, B, 10, 8, 7 are in arithmetic mean of 9. And the most frequent occurring number is 8. Then A into B is equals to what? 120. उसके बाद में statement 2, let A and B the two positive integers such that A plus B plus A into B is equals to 84.
then a plus b is equals to 20. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. अब इसमें से करना क्या है, पहले आप समझिए. पहले तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन, बताइए मुझे. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? नॉर्मल एवरेज. तो अगर मैं इनको देखता हूं तो कितने टर्म से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टर्म का एवरेज कितना है? 9. तो इन सबका एडिशन कितना होगा? 72. तो पहली इक्वेशन लिख रहा हूं, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस a प्लस b प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 72. क्लियर है मेरी बात? अब इसको सॉल्व करते हैं और a और b की वैल्यू निकालते हैं. तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34, 34 और 8 42 प्लस 7 is 49. So this is 49 and that is equal to 72. तो a plus b की वैल्यू कितनी आ गई? 23. है ना? और मोड जो होता है मिडिल नंबर होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने में. मोड क्या होता है? ये जो मोड लिखा है ना, सबसे ज्यादा बार जो नंबर आता है उसको मोड का नाम दिया जाता है. तो यहाँ पे 8 कितनी बार है? 2 बार. 7 भी कितनी बार है? 2 बार. तो एक बार 8 को और आना जरूरी है, मतलब ए और बी में से एक वैल्यू को 8 होना जरूरी है. तो अगर ये 8 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15. तो इससे इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 120. तो पहला वाला तो करेक्ट है. पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है. क्लियर है मेरी बात? क्योंकि मोड को 8 बनाने के लिए हमें ए या बी में से एक की वैल्यू को 8 लेना ही पड़ेगा. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन. आप ध्यान रखिए, सीमैट के पेपर में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आते हैं. तो ए और बी में से एक वैल्यू 8 होगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? 15. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 120 आ जाएगा. ये देन लिखा है ना, यही प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो क्या ए इंटू बी का प्रोडक्ट 120 होगा. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट 2 के बारे में. स्टेटमेंट 1 हमारा क्या आ गया है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ये हमारा करेक्ट हो गया है. स्टेटमेंट 2, let a and b two positive integers such that a plus b into plus a into b is equals to 84. तो वो बोल रहा है then a plus what? 20. a plus b will be what? 20. तो आप थोड़ा सोचें कैसे करेंगे इस सवाल को. फिर I'll give you the insight of this question. क्योंकि अगर आप नहीं सोच पाओगे तो कर नहीं पाओगे. क्लियर है मेरी बात? चलिए देखिए, आप लोगों को लग रहा है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना. बोलिए हाँ या ना. तब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? देखो, अलजेब्रा में हमेशा ध्यान रखना, कुछ एक छोटे से अजम्पशन से सवाल बदल जाता है. कैसे बदल जाता है? छोटे से अजम्पशन से सवाल बदल जाता है. तो अजम्पशन ये करना है कि इस इक्वेशन में 1 को ऐड कर दो. बस ये 1 ही क्यों ऐड करना है नहीं समझ में आता है कई बार. मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया है तो उधर 84. हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? Sir, repeated. Your voice was not clear. माय वॉइस इज नॉट क्लियर. बाकी सबको आ रही मेरी आवाज? Yes sir, आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. Now it's audible, sir. Before it was not audible. That's why. बेटा मेरे को लगता है आपके एंड पे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि बाकी सबको क्लियर आ रही ना आवाज. तो ये 1 प्लस a प्लस, इसको मैं अगर ब्रेक डाउन कर लूंगा तो इट विल बिकम a प्लस 1 प्लस इनटू b प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 85. और 85 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो इट इज व्हाट? 17 इंटू 5. एक वैल्यू 17 होगी और एक वैल्यू क्या होगी? 5. क्लियर है मेरी बात? अगर एक वैल्यू 17 होगी तो एक वैल्यू क्या होगी? 5. अब इसके हिसाब से अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 16 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. तो क्या इनका एडिशन 20 आ रहा है? तो इनका एडिशन क्या आ रहा है? 20. सो दिस इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. एक वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 16 और एक वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 4. तो दोनों का एडिशन कितना बन गया है? 20. समझ में आई मेरी बात आपको ये? क्योंकि इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने का. चले आगे चले भैया. एवरीबडी इज देयर और स्लीपिंग? आर यू देयर इन द क्लास और स्लीपिंग? Sir, in the class. तो आवाज क्यों नहीं आ रही यस और नो की? अगला क्वेश्चन है, Yes, फाइंड sir. द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³. इसका फॉर्मूला क्या होता है, पता है किसी को?
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब? तो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। इसमें से आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो पता है कितनी है, 3। तो मुझे इतना कंफर्म हो गया कि मेरा आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो मेरा आंसर बी और सी तो नहीं हो सकता है, मेरा आंसर 6 होगा या फिर क्या होगा 9। एक्स वाई की वैल्यू पता है 2, तो यहाँ पे -2 भी आ गया, लेकिन प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कैन आई फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई और एक्स वाई? तो यस, आई राइट डाउन द फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एज इट इज रखा है मैंने, 3 का स्क्वायर 9 था, उसमें से -4 कर दिया है। तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 5। तो मैं यहाँ पे इस 5 को पुट कर देता हूँ, तो इट विल बिकम 3 इंटू 3, तो आंसर इज 9। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलिए यस और नो। Yes, sir. थोड़ा इससे ही फास्ट। थोड़ा फास्ट हो गया। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू का। अगर आप वो निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर क्यों लगाया सर उसमें, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाने के बाद काय का लगाया, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी दी हुई है क्वेश्चन में मुझे। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको दूसरा फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा ना। यस बोलिए, क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। यस सर। Pipe and cistern, time and work. 2 pipes A and B can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively. तो हम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, A can fill it in 5 hours and B can fill it in 20 hours. Both the pipes are open together, can fill the same tank in. तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या लेते हैं इसमें एलसीएम। तो 20 और 5 का एलसीएम 20 ही आएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब A प्लस बी टुगेदर की बात कर रहे हैं, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई 5। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफिशिएंसी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेरा वर्क जो मैंने अज्यूम किया है। तो ये 20 ही काम करना है, लेकिन मेरी स्पीड कितने की है 5 की। तो आई टेक 4 hours to solve this, 4 hours to complete the tank. So my answer would be what? 4 hours. क्लियर है मेरी बात? बोलिए yes or no. बोलिए yes or no. यस सर। Yes, sir. चलिए, I'll move to the next question and that is going to be मेरे ख्याल से I think so the last question of the day. चलिए ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है क्वेश्चन में। जून 2020 में द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था वो कितना था 3:2 था। एंड इन सितंबर 2020 देयर वर 80 फीवर बॉयज। इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब कोई बता सकता है मुझे? 80 फीवर बॉयज, इसका मतलब कोई बता सकता है क्या मुझे लाइन का? 80 फीवर बॉयज का मतलब क्या होता है? Anybody? सर कुछ 80 बॉय थे और कुछ 20 गर्ल्स थी। कुछ नहीं है, 80 फीवर का मतलब है 80 लोग कम हो गए। अब क्या हो गए, 80 लोग कम हो गए। तो पुराने रेशो में से अगर आप चाहें तो सॉल्व करने के लिए, बॉयज कितने कम हुए 80 और लड़कियां कितनी कम हुई है 20, और अब रेशो कितना हो गया उनका कॉलेज में 7:5। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आता है देख लेते हैं अपन। 15x माइनस 400 इज इक्वल टू 14x माइनस 140। तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 240। अब अगर मैं देखता हूं 260, सॉरी माइनस करने में गलती हो गई, 260 आ जाएगी। और मेरे को टोटल नंबर ऑफ जून के निकालने हैं, तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5।
x की वैल्यू डाल दूंगा मैं 260, तो आंसर आ जाएगा 1300। क्लियर है मेरी बात? आंसर क्या आ जाएगा? 1300। क्लियर है? सबको क्लियर है क्वेश्चन? सर 1200 होना चाहिए ना सर? 1200 होना चाहिए था। होना क्यों चाहिए था? x की वैल्यू कितनी आई है? 260। अच्छा ओके ओके सर, मैं 240 निकल गया था। तो मैंने भी गलती से 240 लिख दी थी पहले। होती है ऐसी माइनर मिस्टेक्स, हो जाती है कई बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है आपको ये? आगे चले। Yes, sir. चलिए, अब मिल्कमैन एड्स 10 लीटर ऑफ वाटर टू 90 लीटर ऑफ मिल्क। आंसर नहीं पता इसका। अब इस क्वेश्चन में ना, आफ्टर सेलिंग द टोटल क्वांटिटी एड्स अ वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी ही सोल्ड। अब वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है वो। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टी एंड ट्रिकी है। थोड़ा सा आप लोग पढ़ के देखिए क्या बोलना चाह रहा है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या ट्विस्ट है क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन आपका जब क्लियर होगा तो आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। आप समझिए, कंसेप्ट बहुत इजी है इस क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। तो आपकी फीलिंग क्या है मैं जानना चाहता हूँ। केवल मेरे को लग रहा है कि आपको भी लग रहा है? ये आप मुझे बताएंगे तो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कॉलेजेस आउट ऑफ इंदौर? ऐसे कितने लोग हैं जो इंदौर के बाहर कॉलेज देख रहे हैं? मी सर। Okay, 1 2, raise your hands. You have that option. Ritik Patel, Parth Makrani, Vaishnavi Tiwari, then we have Mohit Khandelwal, Lakhan Yadav, Sakshi Agrawal, Harsh Jat. Some of them I know. उसके अलावा ठीक है। And rest you are looking at college from इंदौर। जो इंदौर से ज्वाइन करना चाहते हैं IND लिख दे इंदौर के अंदर, मतलब चैटबॉट में IND डाल दे। टाइप IND इन द चैटबॉट जो इंदौर से ज्वाइन करना चाहते हैं। IND, नॉट वाई अनिकेत, IND जो इंदौर से ज्वाइन करना चाहते हैं उसको IND चाहिए। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? वो क्या करें? IND कर दें। Sir, there is something on screen. हाँ, अब दिख रहा है आपको? Now it's fine, sir. चलिए, देखिए इस क्वेश्चन में करेक्शन है छोटा सा। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जो लिखी ना, इसका लिखा हुआ है 1/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी। तो इसको आप समझिए। अब क्वेश्चन में जो करेक्शन था, इसके बाद क्वेश्चन कैसे होगा बता देता हूँ। यहाँ पे 90 लीटर्स है आपके पास में किस चीज का? मिल्क का। और 10 लीटर आपके पास में क्या है? पानी। उसमें से आपने इस 100 लीटर में से कितना बेच दिया है? 20 लीटर। 1/5 कितना होता है 100 का? 20 लीटर। और इस 20 लीटर में से आप ध्यान से देखिएगा, 18 लीटर तो जाएगा मिल्क और 2 लीटर जाएगा वाटर। क्लियर है मेरी बात? तो बचे हुए इसमें से 18 लीटर चला गया है, तो सर बचा कितना ये? 20 हाँ जी, 20:80। अच्छा आप आंसर बता रहे हैं, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा करने में। मेरे ख्याल से आपका आंसर गलत है, 20:80 तो नहीं है। तो भी अपन देखते हैं क्या है आगे। तो यहाँ पे से 18 लीटर बचेगा। 18 लीटर आपका चले जाएगा, क्या चले जाएगा? 18 लीटर मिल्क। तो 18 लीटर जब मिल्क जा रहा है, 90 में से 18 लीटर चला गया, तो बचा क्या? 72। तो 72 लीटर आपके पास में क्या बचा है? मिल्क बचा है। और इसमें से कितना चला गया है? 2 लीटर वाटर। तो बचा कितना वाटर है? 8 लीटर। लेकिन अब आप ये जो आपने 20 लीटर बेचा है, उसमें आप क्या करोगे? यू विल ऐड 20 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे 20 लीटर ऑफ वाटर इसमें ऐड हो जाएगा, तो आंसर विल बी 28। तो आपका मिल्क तो 72 बचा है। इसको देख के भी मैं आंसर मार्क कर सकता था कि मिल्क लेफ्ट विल बी 72, और अदर रेशो 100 में से माइनस करके आपकी वैल्यू आ सकती थी। क्लियर है मेरी बात? बोलिए यस और नो। Sir, where we add that extra milk, extra water? ये एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया ना मैंने, 20 लीटर। मैंने एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया ना 20 लीटर यहाँ पे। चलिए गाइस, I need to make some announcement right now over here, and I'm excited to make those announcement. वो announcement ये है कि we are going to launch a CMAT batch next week.
एट आवर इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड सेशंस। 3 मोड में हम लॉन्च कर रहे हैं। एक हाइब्रिड है जिसमें ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी होती है। दूसरी होती है केवल ऑनलाइन मोड पे आप लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं ऐसे सेशन को अटेंड कर सकते हैं सारे आपके लाइव क्लासेस के। और तीसरी होती है रिकॉर्डेड सेशन की। तो इफ यू वांट टू जॉइन दीस काइंड ऑफ क्लासेस विद अस, you can connect with our counselor or you can connect with the number which I am sharing you right now. This is my number. Clear है मेरी बात? बोलिए हाँ या ना? तो we are starting Yes, sir. we are starting with the classes from next week for CMAT, क्योंकि CMAT अब बहुत जल्द आने वाला है। और इसी के साथ में जो लोग इंदौर में कॉलेज देख रहे हैं वो अपने को जनरल कैटेगरी में लाने के बाद भी हम उनको स्कॉलरशिप दिला सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो भी हम उनको स्कॉलरशिप दिला सकते हैं। हमारा ही एक स्टूडेंट अभी प्रेस्टीज से एमबीए कर रहा है विद फीस ऑफ जस्ट 16,000 रुपीज पर सेमेस्टर। क्लियर हो रही है मेरी बात? कितने में कर रहा है वो? ओनली इन 16,000 रुपीज पर सेमेस्टर एंड ही गॉट अ प्लेसमेंट ऑफ 5.8 लाख, कुछ 6 लाख का प्लेसमेंट भी लग गया है उसका। तो आप लोग ध्यान रखिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी हेल्पफुल टू यू फॉर फर्दर इन योर फर्दर गाइडेंस। क्लियर है मेरी बात? और आपको एक रिव्यू फॉर्म मिलेगा कल, तो उसके अंदर प्लीज गिव मी द रिव्यूज ऑफ द वेबिनार, और आप और कौन से टॉपिक पे वेबिनार चाहते हैं वो भी आप वहां पे बता सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर।